Assalamu alaikum warahmatullah. I hope all of you students are fine and safe. Today I am here for the class 10 students. We are discussing electric current. Hope you have understood what the electric current is and what is potential difference. अगर किसी को अभी भी कोई confusion रह गया हो, he may go to the previous videos or previous lectures. I hope that will help you to understand what is electric current and what is potential difference. Now there is a relationship between electric current and potential difference. Relationship यानी क्या रिश्ता है इलेक्ट्रिक करंट का और पोटेंशियल डिफरेंस का, क्या फ़र्क पड़ता है इलेक्ट्रिक करंट का पोटेंशियल डिफरेंस से और पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है इलेक्ट्रिक करंट से, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. This relationship was shown by a German physicist whose name is George Ohm. He stated the relationship in the form of a law that is called it is known as Ohm's law. And what is Ohm's law? Before stating the Ohm's law, first we should know that what is Ohm's law about. ये Ohm's law क्या वना, ये Ohm's law में क्या स्टेट होता है. Ohm's law shows the relationship. Ohm's law gives the relationship between electric current I and potential difference V. यानी अख रिश्ता अख च कथ का दरमियान इलेक्ट्रिक करंट्स तो पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या रिश्तेदारी छ, क्या रिलेशनशिप छ इन दोनों दरमियान. दैट रिलेशनशिप was given by the Ohm in the form of a famous law that is called Ohm's law. सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. It is one of the important questions as per the examination is concerned. और अगर एग्जामिनेशन के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे फिर भी आपके आने वाले क्लासेस में आपके काम आने वाला सवाल है. इसलिए यह लॉ आपको बार बार आगे चलकर आपके स्टडीज़ में आपके सामने आएगा, इसलिए कोशिश करना है कि इसके समझने की. What is Ohm's law? पहले ये याद रखना है. Ohm's law gives the relationship between potential difference and electric current. Now what is the law? What is the statement? It states that which states that is Ohm's law. George Ohm states that the electric current flowing through a conductor, the electric current flowing, पहले मैं लिखूंगा फिर मैं समझाने की कोशिश करूंगा. It states that an electric current flowing through a conductor, or we can say as circuit, is directly proportional to, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करूंगा. It states that the magnitude of electric current, magnitude of electric current flowing through a conductor or a circuit is directly proportional to what? Potential difference across the two ends of the conductor or the circuit. सर्किट अभी खत्म नहीं हुआ है. प्रोवाइडेड, लेकिन ये कंडीशन की बुनियाद पे है. प्रोवाइडेड दैट द फिजिकल कंडीशंस physical conditions
remain the same. This is Ohm's law. Now I will make you understand in the very simple language. Ohm's law states that the magnitude of electric current, ये जो आपके सामने फिगर बनी हुई है, it is the figure of an electric circuit. वो मैं अभी आपको अच्छे से समझाऊंगा. This is electric circuit. और electric circuit में जो source of current होता है, that is called battery. That is called battery. बैटरी से जो करंट यहाँ पे फ्लो होगी इस सर्किट में, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट, जो इस सर्किट में आप कहीं पर भी मेजर करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ is directly proportional to in the magnitude of electric current. Magnitude of electric current means how much current is flowing through the circuit. Are you getting me? How much current is flowing through the circuit. In कश्मीरी में हम अगर इसको कहें कि कौचा करंट कौचा अगो करंट पकान कौचा करंट पकान या कौचा करंट पक यम इलेक्ट्रिक सर्किट मज that is directly proportional to potential difference across their ends. यानी जिस सोर्स से इलेक्ट्रिक करंट निकलती है that is बैटरी यम सोर्स मज इलेक्ट्रिक करंट नेरान छ तथ सोर्स मज कौचा छ पोटेंशियल डिफरेंस तम सोर्स के दोन टर्मिनलन दरमियान कौचा छ पोटेंशियल डिफरेंस कशिर पट कि युता यथ सोर्सस मज युता यथ बैटरी मज पोटेंशियल डिफरेंस अमकिन दोन टर्मिनलन दरमियान ज्यादा त्यूता आस यम सर्किट मज पकन वाजी करंटुक मैग्नीट्यूड ते ज्यादा लेकिन प्रोवाइडेड यहाँ पे कंडीशन है द फिजिकल कंडीशंस रिमेन द सेम. फिजिकल कंडीशंस मीन्स इसमें जो हम बैटरी यूज करते हैं बैटरी ते गछ यही रोजन रजिस्टर जो हम यहाँ पे यूज करते हैं रजिस्टर गछ यही रोजन कंडक्टिंग वायर विच यूज करन अगर यही वायर कर बार बार इस्तेमाल ये पे करो एक्सपेरिमेंट्स ठीक और टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग सह चेंज गसन क्योंकि वो हम आगे भी पढ़ेंगे इंक्रीज इन टेम्परेचर अगर टेम्परेचर इंक्रीज गस दैट विल इफेक्ट द रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर यानी अगर टेम्परेचर इंक्रीज गस इवन कि इलेक्ट्रिक करंट पक ती यूचा मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आस मगर अगर योर इंक्रीज इन टेम्परेचर गो इंक्रीज इन टेम्परेचर सत प्रॉपर्टी चेंज गसान कत कंडक्टर्स कि कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस इंक्रीज गसान वो करंट ये हो बराबर योर यथ मज पोटेंशियल आसे मगर बह दीनस रेजिस्टेंस यथ करंट पकन कह तम सत कि करंट मैग्नीट्यूड कम गत मगर सह गो पोटेंशियल डिफरेंस सह गो एक्सटर्नल फैक्टर सत दैट इज वाई कि ओहम्स लॉ जरूरी थवन यह टर्म सत याद यह अलग सेंटेंस थवन जरूरी लिखन सत अदरवाइज यह स्टेटमेंट तोतन करेक्ट कह क्या ओहम्स लॉ दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कचा करंट हसा पक कुन कंडक्टर मज या कुन सर्किट मज सह हसा डायरेक्टली डिपेंड कत पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर कि इन कंडक्टर यह गो टर्मिनल यह गो ब्या टर्मिनल इन दोन टर्मिनलन दरमियान कोता लोगमुत पोटेंशियल डिफरेंस यूता यथ बैटरी मज पोटेंशियल डिफरेंस तुत मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूता मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा तमो मतलब गो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कम सह एमीटर सेफ अगर सह कम तमो मतलब गो तेल पाने कि यथ बैटरी मज पोटेंशियल डिफरेंस कम ये और कशिर पे वन कोशिश कर इस पे इन्वर्टर बैटरी असल चार्ज अस लंप निवान असल पावर वनान तम दह वन अगर यह सोलर बैटरी पे वन ओह आज जाए खुल ताफ आज गई बैटरी फुल चार्ज अस कन लग पता अस आए चार्ज अथ ना अस कन लग पता अस वो आज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा अस कोर पाने अंदाज कि बैटरी गई चार्ज ज्यादा गो अगर ओतन पोर्मुत कह सान यह फिजिक्स या इलेक्ट्रिक करंट वो हेको अत रीजन दिख लॉजिक दिख कि क्या आज मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ज्यादा बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस इन द बैटरी इज मोर टुडे यूता पोटेंशियल डिफरेंस पे चेर कम गसान अगर यह पावर टीवी मुख्तलिफ सब्सटेंसेस अत पे चलावो पे वुचान कि करंट कम गसान वन जल्दी जल्दी फलानी चीज करो बंद करंट गई कम करंट क्या कम वन करंट गई कम वन बैटरी गई डाउन गो दैट मीन्स वी आर रिलेटिंग unknowingly we do not know about the reason इवन कि अगर कह अनपढ़ तक सच वन यह कर लंप बंद बैटरी गई डाउन अगर तमिस वनो कि बैटरी डाउन तो यथ क्या वास्ते शायद कि सह हेक तथ कन समझित कि नाउ यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड हिम यह क्या रीजन बैटरी डाउन मतलब गो बैटरी मज गई पोटेंशियल डिफरेंस लज कम गसने यूता पोटेंशियल डिफरेंस कम लज गसने तूत लोग मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कम गसने तो यह मैं एक बार दोहराऊंगा उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे इससे.
It states that the magnitude of electric current flowing through a conductor or a circuit is directly proportional to potential difference across the ends, provided that the physical conditions remain the same. अगर हम इसको sum up करेंगे, in sum up, that means Ohm's law states that, and that is I, the magnitude of current is denoted by I, is directly proportional to potential difference, that is V, across its ends, or V is directly proportional to I. So in very short form, Ohm's law is I is directly proportional to V or V is directly proportional to I. और V ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी, तो यहाँ ये लिखूंगा आगे, और जैसे आपको उसमें घर में आसानी हो जाए नोट डाउन करने में, आप स्टेप बाय स्टेप नीचे लिखेंगे, ऐसे आगे चलकर कंफ्यूजन होता है. V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मैथमेटिक्स आप अच्छे से जानते होंगे. ये प्रोपोर्शनलिटी इस कन्वर्ट करो इक्वल्स में, तब क्या यह तेल बदल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो हम लिखेंगे V इज इक्वल टू I, लेकिन ऐसे ही नहीं लिख सकेंगे, फिर हमें प्रोपोर्शनलिटी का वैल्यू देना है. दैट प्रोपोर्शनलिटी का वैल्यू क्या है यहाँ पर, दैट इज R. तो क्या है ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू I इंटू R. V इज इक्वल टू I इंटू R. ये R क्या हो, किसी के जहन में यह सवाल है कि R को पर आओ. This R is constant. क्या वो constant है? It is proportionality constant. This R is proportionality constant. Proportionality constant. Constant आपको पता है constant क्या होता है, same. अब देखिए इसको और मॉडिफाई करेंगे तो ये बन गया V I, अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ये इनटू है, ये यहाँ पर बनेगा डिवाइड बाय, that is equal to R. अब बताइए what does this statement mean? This is Ohm's law. These all equations that you are watching or observing here are Ohm's law. V is directly proportional to I is directly proportional to V, और V is equal to IR. इक्वल टू कहाँ से आ गया, प्रोपोर्शनलिटी के बदले R कहाँ से आ गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. It is constant. That means R is constant for all observations. That is V divided by I is equal to R. What does V divided by I mean? It means the ratio between V and I is always constant for a given set of substances. For a given set of electric circuit, the ratio between V and I is always constant. But if we want to verify the Ohm's law, अगर इस Ohm's law से verify करो, that we have to prove that while increasing or decreasing the magnitude of V, this magnitude of V या magnitude of electric current, ये दोनों में कोई magnitude change करो, the ratio between V and I should always remain the same. If it happens so, then Ohm's law is verified. Hope you are getting. ये बिल्कुल आसान है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा. ये है Ohm's law का statement, and this is mathematically V is equal to IR or V divided by I is equal to R, where R is constant. It is called a proportionality constant, या इसको कहते हैं resistance. हम resistance पे आगे जाएंगे, लेकिन उससे पहले let us try to verify the Ohm's law. मैं माजरत खा हूँ कि आज ये इंटरनेट हमें ठीक से नहीं चलता है. आपको ज़्यादा टाइम लगता होगा, जैसे मुझे लगता है अपलोड करने में, आपको भी लगता होगा. बट एट द कॉस्ट ऑफ योर नॉलेज, एट द कॉस्ट ऑफ योर स्टडीज़, दिस इज़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आपको करनी चाहिए और जो हमें भी करनी है. इसलिए जो MBs और GBs आप बाकी चीज़ों में खर्च करते हैं, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स टू मेक द गुड यूज़ ऑफ दिस इंटरनेट. जो भी हमारे पास अवेलेबल है, हम ये एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते हैं पर कल के दुनिया से. आज आपने देखा कि डोमिसाइल रूल्स भी चेंज हो गए हैं. नाउ आवर स्टूडेंट्स हैव टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू एग्जिस्ट. डार्विनिज्म जो है, जो आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी, दैट इज एग्जिस्टिंग इन द प्रेजेंट वर्ल्ड. द वर्ल्ड विल स्टैंड बाय द फिटेस्ट. इसलिए आपको क्या रहना है, फिट रहना है. फिट रहने के लिए अपनी स्टडीज़ पे किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज़ नहीं करना है. वेरीफाई, हाउ कैन वी वेरीफाई Ohm's law? इट विल टेक 2 days. इंशाल्लाह आज के लेक्चर में मैं थोड़ा सा बताऊंगा, कल इस पर फिर वो नया लेक्चर देंगे. वेरीफाई, हाउ कैन वी वेरीफाई दैट? वेरीफाई मीन्स V डिवाइड बाई I इज इक्वल टू R इन ऑल कंडीशंस. इसके लिए क्या करना है, टू वेरीफाई द Ohm's law हमें क्या चाहिए? वी नीड अ बैटरी
a conducting wire, insulated copper wire, ठीक, क्योंकि अगर इंसुलेटेड वायर रखेंगे एक तो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा उस पर, दूसरा इलेक्ट्रिक एनर्जी विल बी लॉस्ट बाय द कंडक्टिंग वायर, इसलिए इंसुलेटेड कॉपर वायर और शॉर्ट सर्किट होने की भी खतरा है। इसलिए क्या है कि कंडक्टिंग इंसुलेटेड कॉपर वायर लेंगे। और क्या चाहिए, एमीटर इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमें एक वोल्ट मीटर चाहिए विच विल बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। ए कांस्टेंट रेजिस्टर, एक रेजिस्टर चाहिए, रेजिस्टर कोई भी हो, चाहे वो बल्ब हो या कोई भी रेजिस्टर हो, जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट ये जो पोटेंशियल डिफरेंस फॉल होगी। और क्या चाहिए, रेहोस्टेट मैंने आपको बताया, इट इज़ वेरिएबल रेजिस्टर, जो बाकी सिस्टम में चेंज करने के बगैर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेहोस्टेट, जिससे मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंज हो सकता है। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एक रेजिस्टेंस से चेंज गछित, यदि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट करो चेंज, v कांस्टेंट, इस वो पत v डिवाइड बाय I गछ नेरन अस प्लस सेम, इवन कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंज गसन, मगर इस वो द रेशियो बिटवीन v एंड I शुड रिमेन द सेम। इफ इट हैपेंस सो देन द एमोमेंट ऑफ वेरीफाइड। तो हमें क्या करना है, हम लिखेंगे सेट a circuit as shown। हम यही लिखेंगे कि एक सर्किट बनाते हैं, एक सर्किट को तैयार करते हैं। कैसे करेंगे तैयार, जैसे हमने दिखाया है। बच्चों क्या करना है, पहले एक बैटरी बनानी है। बैटरी कैसे बनानी है, मैंने ऑलरेडी कहा है कि एक लंबी वाली लाइन और छोटी लाइन डालनी है, ये H, लेकिन बीच में H मिलाना नहीं है। फिर उसके साथ और एक सेल मिलानी है, इनको दो को कनेक्ट करके ये दो सेल्स बन गई हैं एक बैटरी। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। ये जो लंबी लाइन जो आप डालते हैं इट इज साइंड एज पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव, ठीक। और कंडक्टिंग वायर जो हमने कहा है कि ये स्ट्रेट लाइन से होती हैं, इसके सीरीज में लगाना है एमीटर, ताकि एमीटर के बीच में से करंट गुजरे। एमीटर की वेरी लो रेजिस्टेंस होती हैं, इट डू नॉट रेजिस्ट द इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट अमज योर पकान तीस अमज और यह बराबर मेजर कौन करंट वायर अमज पकान। और जो रेजिस्टर है, रेजिस्टर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर कर सकते हैं, जहाँ पे इसकी पोटेंशियल डिफरेंस फॉल होगी, जितनी पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी में होगी उतनी ही पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टर में होगी। एंड वी कैन मेजर दैट रेजिस्टर बाय कनेक्टिंग इट्स टू एंड्स विद अ वोल्ट मीटर। तो पता लगाना है वोल्ट मीटर रेजिस्टर को। रेजिस्टर की वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हाई होती है, इट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। ये सिर्फ मेजर करता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो वही है पोटेंशियल डिफरेंस, यमन कोता पोटेंशियल करंट यमन कोता चार्ज पोटेंशियल सह मेजर वोल्ट मीटर। दैट इज व्हाई इट इज बीइंग कनेक्टेड पैरेलल टू द टू एंड्स ऑफ द रेजिस्टर। और एक क्या चाहिए, रेहोस्टेट। यहाँ पर मैंने ये एरोस के लिखा है, हम रेहोस्टेट को यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इस करंट को इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, I पे इफेक्ट पड़ेगा। हम यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ डिफरेंट पॉइंट्स पे रेहोस्टेट को कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को वेरी कर सकते हैं। अब क्या करना है, a battery V, a plug यानी स्विच, से फॉर एग्जाम्पल इसका रखेंगे K, a rheostat or H, ammeter A, resistor R, and a voltmeter V are connected with insulated copper wire as shown in the figure. Hope you got this. ठीक, पहले लिखना है, हमने ऐसे कनेक्ट किया है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमीटर। एमीटर क्या मेजर करेगा, एमीटर विल मेजर द magnitude of I यानी इलेक्ट्रिक करंट, and voltmeter
will measure the magnitude of V in the potential difference. Understand? Now, at a particular setting in the rheostat, जो मैं अभी कह रहा हूँ, at a particular setting in the rheostat, अगर इस rheostat पे गुंजाइश एक particular setting पे ये connect करो circuit, ammeter and voltmeter will show their readings. Understand? At a particular setting in the rheostat, say for example at point 1, अगर मैं इसको लूँगा 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, पहले हम कनेक्ट करेंगे rheostat को at point 1, that is at a particular setting in the rheostat, ammeter and voltmeter will show their readings respectively. It will show I and it will show V. Note down the readings of both ammeter and voltmeter. ठीक हो गया? ठीक. After that we will change the settings of the rheostat. How we will change the set after changing the settings in the rheostat. After changing the settings in the rheostat, now let us connect the rheostat at point 2. After that, let's connect and again note down the readings of A and V. After that, we will change the setting of rheostat from 2 to 3. We will again note down the readings of A and V. Then after that, we will again change the readings, settings of the rheostat at 4. Now we will connect this rheostat at point 4 and will again change note the readings of A and V. हम देखेंगे कि जब हम यहाँ पर rheostat की सेटिंग चेंज करते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंज होता था, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ती थी, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कम होता था. या अगर रेजिस्टेंस कम होती थी, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ज़्यादा होता है. तो ये क्या होता है कि हर एक सेटिंग पर, rheostat की हर एक सेटिंग पर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंज होता है. और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंज कैसे पता चलता है? इट इज शोन बाय द एमीटर फॉर डिफरेंट रीडिंग्स फॉर डिफरेंट सेटिंग्स ऑफ द rheostat. और हम साथ साथ वोल्ट मीटर की रीडिंग भी नोट करते रहेंगे. तो यह हमें लिखना है that at different settings of the rheostat, we note down the readings of ammeter and voltmeter, and at last when we find the ratio between, when we find the ratio between V and I in all the settings, in all the conditions that we have noted down at different readings, when we find out the ratio between V and I, it is constant. It is constant. It is constant. It is same. That means, which means that V divided by I for all the readings is equal to constant, and that constant has been named as resistance, that is R. So Ohm's law is verified. मेरी बात आपको अगर ना समझ आए, मैंने कहा ना इसमें, और मैं आपको एक प्रैक्टिकल का एक डेमो भी दूंगा कल इसमें विद द हेल्प ऑफ द फिगर, क्योंकि मेरे पास वो डिवाइसेस नहीं है जो इसमें चाहिए, घर पे तो मौजूद नहीं है. लेकिन मैं आपको यहाँ पर फिगर में, हम कल बैटरी चेंज करेंगे, rheostat नहीं लगाएंगे, हम कल बैटरी चेंज करेंगे, उसको डिफरेंट वोल्टेज की वोल्टेज चेंज करेंगे, वी विल फाइंड आउट द रीडिंग. लेकिन पहले आपको ये समझना है कि वेरीफाई कैसे करते हैं. वेरीफाई करने के लिए हमें चाहिए बैटरी, स्विच, rheostat, रजिस्टर, एमीटर, वोल्टमीटर. फिर इनको कनेक्ट करना है लाइक दिस. ये आपको सीखना है. एमीटर के किस तरह लगाना होता है सीरीज में, वोल्टमीटर किस तरह लगाना होता है, रजिस्टर, rheostat वगैरह. फिर क्या लिखना है? एमीटर गिव्स द रीडिंग्स ऑफ द आई, voltmeter gives the magnitude of V. फिर यहाँ लिखना है at a particular setting in the rheostat we note down the readings of ammeter and voltmeter, that is I and V. तो वही नोट करें. After changing the settings at the rheostat, we find out that the reading in the ammeter gets changed. ये change होती हैं. And at all the settings of the rheostat we keep on note down the readings of ammeter and voltmeter respectively. हर एक सेटिंग पर, rheostat की हर एक सेटिंग पर हम एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग्स नोट करते रहते हैं. एंड आफ्टर फाइंडिंग आउट द रेशियो बिटवीन V एंड I एट ऑल रीडिंग्स, जो भी रीडिंग्स हमने नोट की हैं, जो भी स्टेप्स पे हमने रीडिंग्स नोट की हैं एमीटर एंड वोल्टमीटर की, आफ्टर कैलकुलेटिंग द रेशियो बिटवीन V एंड I फॉर ऑल द रीडिंग्स, वी कम टू कैलकुलेशन दैट ratio between V and I is constant for all the readings, hence Ohm's law is verified. Hope you got it. I try my level best to be precise, क्योंकि MBs आपकी खर्च होती है, उसका भी टाइम लगता है डाउनलोड करने में.
इसलिए लेकिन मैं आप लोगों से लास्ट पे फिर ये रिक्वेस्ट करूँगा आप बच्चों से कि कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। जितने भी MBs खर्च होते हैं, ये इन्वेस्टमेंट जो आप आज करेंगे, इट विल पे, इट विल शो इट्स रिजल्ट, इट विल प्रे इन द फॉर्म ऑफ द फ्रूट्स इन योर फ्यूचर इंशाल्लाह. I hope you all the best. I wish you all the best and wish you the safety from this deadly virus. Khuda Hafiz. Have a nice day.